Good morning, students of class 5. Today we will learn about a new topic which named as factor. First of all, we understand what is the meaning of factor. A factor is a number which divides a number completed and leaving no remainder behind itself. Let's understand what we mean of the factor of a number. So let's take a number 12. Student, here I take a number 12. To begin with, let's find out the pair of number they give us 12 as their product. So स्टूडेंट हमने यहाँ पे जो नंबर 12 लिया हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको बोला कि वी टेक पेयर्स किसके लेंगे कि हम ऐसे कोई दो नंबर लेंगे जिनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या नंबर है 12. सो हेयर आई टेक द first of all I take two numbers 1 and 12. When I multiply 1 by 12 I got the result 12. When I multiply 2 by 6 I get the result 12. 3 multiply 4 equals to 12. So student, here the three pairs of the number is 1 and 12. हम कह सकते हैं कि 1 and 12 जो two numbers है, when we multiply them togetherly they give us this result 12. When we multiply 2 and 6 we get the result 12. When we multiply two numbers 3 and 4 we get the result 12. Student, अब हम देखेंगे कि ये जो पेयर्स ऑफ नंबर हैं, अब हम इनको डिवाइड करके देखेंगे. यहाँ तो हमने मल्टीप्लाई करके देखा कि व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी टू नंबर दे गिव अस द सेम नंबर, तो ये तो मल्टीपल्स हो गए. बट अब हम देखेंगे कि फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने, तो हम देखेंगे कि डिवाइड करने पे भी आता है नहीं आता. सो वी गेट थ्री पेयर्स ऑफ नंबर दे एज प्रोडक्ट 12. One the another pair of when the multiple will give us as a product 12, and separately what is the meaning of it. So now first we take two number 1 and 12. So student, first of all I divide number 12 by 1. You know I have one pair of two numbers 12 and 1. So first of all, but पहले हमने मल्टीपल करके देखा, बट नाउ अभी हम डिवाइड करेंगे. फर्स्ट टाइम टेक द नंबर 12. मैंने 12 को किससे डिवाइड किया, 1 से. तो when I speak the table of 1, 1 12 ja 12. So the quotient is 12 and the remainder is 0. Because when I write a table of 1, I know that 12 is coming to be when I multiply 1 by 12. So like another that, now I divide number 12 by 12. So when I speak the table of 12, 12 and 12. So the quotient is 1 and the remainder is 0. These digit, thus digit 12 is divisible by 1 and 12. तो स्टूडेंट हम क्या बोल सकते हैं कि जो नंबर 12 है आप उसे 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं and 1 से भी कर सकते हैं. So we can say that number 1 and 12 are the factors of 12. Now we take the another example. Now we take another pair of number. Now I'm take two numbers 2 and 6. Here I take number 2 and 6. So first of all I divided 12 by 2. When I divided by 2 by 12, so 2 6 are 12. So the quotient is 6 and the remainder is 0. Now I divided 12 by 6. When I divided by 6, 6 1 is 6, 6 2 are 12. So the quotient is 2 and the remainder is 0. So student, thus we can say that number 12 is also divided by 2 and 6. So the factors of 12 are 2 and 6. Now we take the last pair of the number. Now we take number 3 and 4. When I divided by number 12 by 3, I got the question 4 and the remainder is 0, because when I speak the table of 3, 3 4s are 12. Now I'm divided 12 by 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12. So the quotient is 3 and the remainder is 0. Thus 12 divisible by 12 number, yeah, 12 divisible by 3 and 4. Then now we understand number 12 is divisible by number 1, 2, 3, 4 and 6 and 12. Hence we say that factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. तो स्टूडेंट हम क्या समझ सकते हैं कि हमने अलग अलग नंबर 2 पेयर्स लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मल्टीपल करके दिखाया, फिर हमने उसको डिवाइड करके शो किया, तो हमने देखा कि फिर भी हमारा रिजल्ट कैसा आया, सेम नंबर आया. सो हेयर आर सम प्रॉपर्टी, हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर विच हेल्प्स टू मेक अस न्यू फैक्टर. A factor is a number which exactly divides a given number, or factors are number you can multiply to get the given number. Students, अभी मैंने आपको जैसे बताया कि हम multiply करके भी factors find कर सकते हैं, and we find the factors by dividing any number. Here are some important points to remember about the factors. So the first is 1 is as factor of every number. Student, जो number 1 होता है वो सबसे smallest natural counting number होता है वैसे तो, लेकिन जब हम factors की बात करते हैं तो हम हर number पे
हम हर नंबर पे इसको डिवाइड करते हैं। लाइक दैट कैसे? Here I multiply number 1 by 6 is equals to 6। तो हम कह सकते हैं कि 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। लाइक हम किसी भी नंबर का टेबल राइट डाउन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि एनी नंबर वी कैन डिवाइड इट बाय 1। सो नाउ द अनदर प्रॉपर्टी इज एवरी नॉन जीरो नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ 0। ज़रूरी नहीं है कि जीरो वाली जो डिजिट होगी वही होगी। लाइक 2 से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एवरी नंबर हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, दैट इज़ 1 and 1 in number itself। लाइक मैंने यहाँ पे हेयर आई राइट द फैक्टर्स ऑफ 7। यू नो स्टूडेंट, जब हम 7 के फैक्टर्स राइट करेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें पता है कि 1 के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लिख सकती हूँ? द फैक्टर ऑफ 7 इज़ 1 एंड द अनदर वी नो कि 7 इज़ नॉट कमिंग इन एनी टेबल, कि 7 जो है वो किसी टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने ही टेबल में आ सकता है। तो वी कैन से दैट कि एवरी नंबर हैज़ एटलीस्ट मीन्स मिनिमम उसके 2 फैक्टर्स होते हैं। लाइक 7 और किसी टेबल में नहीं आता तो वो 1 and 7 के टेबल में तो ज़रूर ही आएगा। सो हियर द लास्ट प्रॉपर्टी फॉर यू, द फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। स्टूडेंट, इस बात का क्या मतलब होता है कि नाउ हियर आई टेक द फैक्टर्स ऑफ 12। हमें पता है कि हमारे जो नंबर है 12 उसके फैक्टर्स क्या क्या थे? 1 2 3 4 6 and 12। तो हमें पता है कि यहाँ पे इतने सारे फैक्टर्स हैं इसके कि 1 के टेबल में भी, 2 भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से। बट द पॉइंट इज़ द फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ ऑलवेज लेस देन, कि जो फैक्टर्स होते हैं किसी नंबर के उस नंबर से कैसे होते हैं स्टूडेंट? लेस देन होते हैं। लेस देन मतलब छोटे होते हैं। तो छोटे कैसे हैं कि हेयर योर नंबर इज़ 12, यू नो दैट हेयर आर द फैक्टर्स ऑफ 12 1 2 3 4। हमें पता है नंबर 1 2 3 4 and 6 आर लेस देन 12, बट द लास्ट फैक्टर ऑफ द 12 इज़ 12 इज़ इक्वल्स टू 12। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर है उसके जो फैक्टर्स होते हैं उससे छोटे हो सकते हैं या फिर उसके बराबर हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि उससे ज़्यादा ग्रेटर नहीं होंगे। मतलब कि 12 का फैक्टर 14 या 16 नहीं होगा, या 20 नहीं होगा, या 100 नहीं होगा। 12 का फैक्टर क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1 हो सकता है। Now we discuss question of this exercise. First we read the question. Find the factors of the following. Student, here are some number for you like 7 9 16. So first we find the factor of 7. So let's see. Student, here the number is, first of all I write the number 7. As you know कि जब हम 7 के फैक्टर्स कैसे राइट डाउन करेंगे, फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम 1। जैसा कि हमें पता है कि 1 के टेबल से सारे नंबर आते हैं, तो व्हेन आई मल्टीप्लाई 1 by 1 7 इक्वल्स टू 7। अभी नो कि हमें पता है कि 7 इज़ कमिंग ओनली टेबल ऑफ ऑन सेल्फ, वो सिर्फ खुद की टेबल में ही आता है और किसी टेबल में नहीं आता है। तो उसका दूसरा फैक्टर क्या हुआ? 7 1 जा 7। Hence 1 and 7 are factor of number 7. Let's we take another number which is 9. Here we write the factors of the 9. First of all we multiply 9 multiply by 1. So first factor is 1 1 9s are 9, 3 3s are 9। हमें पता है 2 की टेबल में 9 नहीं आता because 9 is an odd number but 2 is an even number. Now take 9 1 जा 9। तो हम बोल सकते हैं कि जो नंबर 9 है उसके फैक्टर्स कौन कौन से? 1 3 and 9। Hence 1 3 and 9 are factor of नंबर 9। स्टूडेंट, हम हमेशा नंबर्स के छोटे नंबर को ही लेंगे या उसके इक्वल नंबर को ही फैक्टर्स मानेंगे। नाउ वी रीड क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट, अभी तक हम एक एक नंबर का फैक्टर फाइंड कर रहे थे। अब आपको एक बार में 2 नंबर्स गिवन होंगे और आपको बताना होगा कि उन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर कॉमन है। सो फर्स्ट द क्वेश्चन इज 8 and 12। तो फर्स्ट वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 8 and 12। लेट्स सी। Student, first we write the factors of 8. When we write the factors of 8, first of all I write 1 1 8 is 8, 2 4 is 8, 4 2 is 8, 8 1 is 8. So we can say that number 8 is divisible by 1 2 4 and 8. So we can say that the factors of 8 are 1 2 4 and 8. Now we find the factors of number 12. Factors of 12 are 1 12 is 12, 2 6 is 12, 3 4 is 12, 4 3 is 12, 6 2 is 12 and 12 1 is 12. So here we first of all we write the factors of what the number. The factors of 8 are 1 2 4 and 8 and the factors of 12 are 1 2 3 4 6 and 12. But student, अभी तक हमने ये तो क्वेश्चन 1 में भी किया था, बट अभी हमें क्या फाइंड करने हैं? वी जस्ट फाइंड हियर ओनली कॉमन फैक्टर। तो फर्स्ट वी राइट द नंबर्स ऑफ बोथ द नंबर। अब हम देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स में से कॉमन नंबर कौन कौन से जो दोनों नंबर में फॉल करें। यू नो दैट व्हेन आई राइट द फैक्टर्स ऑफ 1, तो 1 इज एज द
1 जो है 8 की टेबल से भी है एंड 8 इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाय 1, तो हम दे सकते हैं कि 12 भी 1 से डिवाइड होता है और 8 भी 1 से होता है, सो द कॉमन फैक्टर इज़ 1. Now the another take the number 2. You know that 8 is also divided by 2. 2 4s are 8 and 2 6 are 12. So the common number is 2. 3 is not coming. 3 ऊपर नहीं है बट नीचे राइट डाउन है. here the 4. So देखिए जो 4 है वो कैसे 4 2 जा 8 and 4 3 is 12. तो we can say that but not now. 8 6 and 12 are not in the same. कि हम देख रहे हैं कि ये जो गिवन नंबर है वो दोनों में नहीं है बट ओनली 3 नंबर्स आर कॉमन हेयर. सो द कॉमन फैक्टर कि जो दोनों नंबर्स में गिवन होंगे स्टूडेंट हम 2 डिजिट 3 डिजिट या 4 डिजिट्स के भी कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं. सो लेट्स सी. So the common factor are 1. So the common factors are 1, 2 and 4. Using this method we can easily find the common factors and any factors of any number. Student, you can do question number 1 and 2 in your CW notebook and do question number 1, 2 in your HW copy and maintain index properly and write the name of any exercise properly. Thank you all.